آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اورنگ آباد میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کام کاج کا علاقائی کمشنر جتیندر پاپڑکر نے لیا جائزہ، متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ عبوری ہوٹل اس پر موصولہ اعتراضات کے ازالے کے لیے میونسپل کمشنر جی شریکانت پترے میدان میں متعلقہ عملے کے ہمراہ کر رہے ہیں۔ شکایت کنندگان اور شہریان سے ملاقاتیں، ماتحتین کو دی اعتراضات حل کرنے کی سخت ہدایت۔ نگر پریشد اور نگر پنچایت انتخابات کے لیے 2 دسمبر کو کی جائے گی رائے دہی۔ پھلمبری نگر پنچایت انتخابات کے لیے پولیس مستعد، شہر میں کیا روٹ مارچ اور دھاندلیاں کرنے والوں کو دلایا اپنی موجودگی کا احساس۔ اور پیٹھن MIDC علاقے میں موجود نعت انڈسٹریز میں لگی بھیانک آگ، 6 فائر گاڑیوں کے عملے کو 5 گھنٹے مسلسل جدوجہد کے بعد آگ بجھانے میں ملی کامیابی۔ کمپنی کا 1 کروڑ روپیوں کا مالی نقصان ہونے کا لگایا جا رہا ہے اندازہ۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کام کاج اور اسکیمات پر عمل آوری کا جائزہ علاقائی کمشنر جتیندر پاپڑکر نے لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ ڈویژنل کمشنریٹ میں منعقدہ اس اہم میٹنگ میں میٹرو پلانر ہرشل باوسکر، اسسٹنٹ میٹرو پلانر رویندر جائے بھائی، سٹی ڈیزائنر ایکسپرٹ سنیل سکلیکر کے علاوہ اتھارٹی حدود میں کام کرنے والے آرکیٹیکٹس، انجینئرز، سرویئرز ایسوسی ایشن، مسیہ کرڈائی، IIA سمیت متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں جاری ترقیاتی کاموں، بہاوی تجاویز اور ضروری اصلاحات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتھارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 17 اکتوبر کی میٹنگ میں TDR کو اتھارٹی حدود میں نافذ کرنے کی منظوری دی ہے۔ DP روڈز اور ریزرویشن کے باعث متاثر ہونے والی زمینوں کے بدلے زمین مالکان کو TDR جاری کیا جائے گا، جس سے ترقیاتی کاموں کو درکار رفتار اور سہولت حاصل ہوگی۔ جس طرح سے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں TDR کی منظوری و استعمال کا طریقہ کار نافذ ہے، اسی طرز پر یہ عمل اتھارٹی میں بھی اختیار کیا جائے گا۔ جائیداد مالکان منظور شدہ TDR کا استعمال اتھارٹی کی حدود میں ہی کر سکیں گے۔ علاقائی کمشنر نے کہا کہ اتھارٹی کے کام میں تیزی، شفافیت اور منصوبہ بندی کی پابندی کو اولین ترجیح دی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اتھارٹی کا بنیادی مقصد شہریوں کو معیاری سہولتیں اور منظم ترقی فراہم کروانا ہے اور تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ ریاستی نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اپنے پارٹی امیدواروں کی انتخابی تشہیر کے لیے شیوگاؤں احمد نگر جانے سے پہلے اورنگ آباد ہوتے ہوئے گزرے، جہاں انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر کھل کر بات کی۔ बघा, या ठिकाणी मी त्याची माहिती घेतो आणि माहिती घेतल्यानंतर खरं म्हणजे पर्यावरणपूरकच आम्ही सगळे प्रकल्प करत असतो आणि ते अनेक प्रकल्पांमधून आपण पाहिलेलं आहे। त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखणं हे शासनाची भूमिका आहे। मी त्याची माहिती घेतो आणि त्या माहितीनंतर मी खरं म्हणजे बघा, असं ते बोलण्याचा उद्देश त्यांचा अधिकाऱ्यांचा नसेल। हे सगळं जो काही निधी जो आहे, ही तिजोरी जी आहे, ही आपली जनता जनार्दनाची आहे, आमचं कोणाचं, आम्ही विश्वस्त आहोत। त्यामुळे असा कुठलाही मतितार्थ त्याच्यामधून काढू नये, एवढंच माझं आपल्याला सांगायचं। بازار ساونگی کے علاقے میں گزشتہ کچھ دنوں سے قومی شاہراہ کو دھول نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے راہگیروں، مقامی تاجروں اور وہیکل سواروں کو پریشانیوں کا سامنا ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق کنگاؤں پھاٹا سے بازار ساونگی اور بوڑکھا سے بازار ساونگی تک تقریباً 15 کلومیٹر تک دھول ہی دھول نظر آ رہی ہے۔ پھلمبری، خلدآباد اور کنڑ تینوں تعلقوں کو جوڑنے والی اس اہم شاہراہ پر روزانہ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہے، لیکن سڑک کے دونوں طرف جاری کام اور کانکریٹنگ کے ناقص معیار نے پورے ہائی وے کو دھول سے بھر دیا ہے۔
तंग सड़क पर गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी के बास मोटरसाइकिल सवार अपनी जान हथेली पर रखकर सफ़र करने पर मजबूर है। हाईवे के एक हिस्से पर कंक्रीटिंग का काम मुकम्मल तो हो गया है, लेकिन मकामी शहरियों का कहना है कि इस काम में बड़े पैमाने पर घपला किया गया है। सीमेंट की सतह के नीचे पत्थर, मिट्टी और ऊंच नीच रह जाने की वजह से गाड़ी गुजरने पर धूल के बड़े बड़े बादल उठते हैं, जिसकी वजह से काम के मेयार पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं और शहरी इसकी तहकीकात का मुतालबा करने लगे हैं। सड़क के किनारे मौजूद दुकानें मुकम्मल तौर पर धूल में ढक गई हैं, जिससे कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि धूल पूरा दिन दुकान में जमा रहती है, जिससे सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। दम्मा, खांसी और नज़ले की शिकायत में इजाफा हुआ है। धूल इतनी बढ़ गई है कि ग्राहक दुकान में दाखिल होने से कतराने लगे हैं। जबकि बाइक सवारों का कहना है कि धूल की वजह से आगे की सड़क नज़र नहीं आती। अचानक सामने आने वाले गड्ढे या रुकावटें न दिखाई देने के बायस हादसात का खतरा बढ़ गया है। बाइक सवार मुंह पर मास्क, रुमाल और आंखों पर चश्मा लगाकर सफ़र करने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि धूल की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। उन लोगों का मुतालबा है कि हाईवे पर धूल कम करने के लिए रोज़ाना पानी का छिड़काव किया जाए, नाकिस काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई की जाए और जारी काम को फौरी मुकम्मल करवाया जाए। अगर जल्द अज जल्द मुनासिब इंतजाम न किए गए तो इस रास्ते पर बड़े हादसात के खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरियान ने सख्त इंतबाह जारी किया है। AMC इंतखाबात के पेश नज़र तैयार करदा अबूरी वोटर लिस्ट पर मौसूला एतराज़ात के इज़ाले के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकान बज़ात खुद मैदान में उतर चुके हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने अपने मातहतीन के हमराह गणेश कॉलोनी रशीदपुरा इलाके को विज़िट दी और यहाँ के साकिनान व शिकायत कुनिंदगान से रास्त मुलाकात की। नाजरीन, AMC इंतज़ामिया ने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 20 नवंबर को अबूरी वोटर लिस्ट ज़ाहिर की थी, जिस पर बड़े पैमाने पर एतराज़ात मौसूल होने लगे हैं। लिहाजा कमिश्नर ने हर महाज अफसर को सख्ती से हिदायत दी कि मौसूल शुदा एतराज़ात की खुद जाँच करे, अपने मातहत अमले के साथ राब्ता रखें और एक दिन पहले मौके का मुआयना करके पंचनामे के ज़रिए मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करें। हर महाज ऑफिसर को सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त मीटिंग्स मुनक़िद करके अपने मुताल्लिक़ा हल्के में दर्ज तमाम एतराज़ात की जाँच, मौक़े मुआयना और पंचनामा मुकम्मल करने के बाद अबूरी वोटर लिस्ट में ज़रूरी तरमीम करने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि जो अफसरान इन अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम मुताल्लिक़ा अमला जंगी बुनियादों पर काम करे और ज़रूरत पड़ने पर रात देर तक मौका मुआयना और पंचनामे मुकम्मल करे। कमिश्नर ने कहा कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अब तक वार्ड सिस्टम के तहत इंतखाबात कराए हैं, लेकिन अब पहली मरतबा वार्ड से ब्लॉक निज़ाम की तरफ कदम उठाया जा रहा है, इसलिए एतराज़ात की तादाद ज़्यादा होने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इस बिना पर ज़रूरी है कि वोटिंग से पहले तमाम एतराज़ात निपटा दिए जाएं ताकि पोलिंग के दिन कोई गड़बड़ न होने पाए और वोटिंग का अमल आसानी से मुकम्मल किया जा सके। इब्तदाई वोटर लिस्ट पर एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख़ 3 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने अबूरी वोटर लिस्ट तैयार करके उसे जारी किया है। म्यूनिसिपल हुदूद में औरंगाबाद मशरिक़, औरंगाबाद मगरिब और वस्ती औरंगाबाद असम्बली हल्के शामिल हैं, जबकि फुलंबरी असम्बली हल्के का कुछ हिस्सा भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में आता है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत इस मामले में संजीदा दिखाई दे रहे हैं और मौसूला एतराज़ात को हल करवाने की गर्ज से वो खुद मैदान में उतर चुके हैं और गुज़िश्ता शाम वो मुताल्लिक़ा अमले के साथ गणेश कॉलोनी रशीदपुरा पहुँचे, वहाँ के साकिनान से रास मुलाकातें की और उनके मसाइल जाने। उनके एतराज़ात सुनने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को उन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी। में दिया ना, अभी आपने ऑब्जेक्शन कब दी? 24 तारीख को परसों दी। अभी इमीडिएटली आ गए, मतलब सही एकदम काम है। हमको ये बोलना है, एक ही यादी थी, सिर्फ हमारे को 2 करना है, रोड के उधर की, रोड के इधर की। पहले एक ही वार्ड था, एक ही यादी थी, सिर्फ यादी को इधर 500 करके होगा। देखो जो अभी जो मतदान के दिन
जो घपला हो गया जो उस टाइम पे गड़बड़ होने से अच्छा बिफोर हो गया। अभी जो भी जितना तुम स्टडी करेंगे ये लोग तो क्या है कागजी काम करेंगे, एक एक प्रभाग रहता है तो अलग रहती है। अभी खरीद की वार्ड अभी प्रभाग है, हम उनको ये बोले कि भाई हमारा ऐसा ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है। अंबड़ नगर परिषद ओहदे के लिए शिवसेना शिंदे ग्रुप की उम्मीदवार सना मुस्तकीम पटेल को एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की जानिब से दी गई हिमायत वापस ले ली गई है। ये ऐलान पार्टी के ज़िला सदर कारके ने दी है। आज अंबड शहरामध्ये अब्दुल सत्तार साहेबांची सभा झाली आणि या सभेमध्ये आम्ही जेव्हा बघितलं त्यांचं बॅनर तर त्या बॅनरमध्ये आमचे आदरणीय नेते लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब, मराठवाड्याचे नेते विक्रमजी काळे साहेब, तसेच जिल्ह्याचे नेते आदरणीय अरविंदजी चव्हाण साहेब, आमच्या शहरामधले शिवाजीराव चोते साहेब, या सर्वांचे कोणत्याही पद्धतीचे फोटो नव्हते। आणि या अगोदर अंबड नगर परिषदच्या या बैठकीमध्ये त्यांनी असं या ठिकाणी प्रचार केला की आमची युती झालेली आहे आणि आमचे फोटो त्यांनी वापरलेले आहेत। तर मी या ठिकाणी असं जाहीर पद्धतीने सांगतो की आमची शिवसेनेसोबत कोणत्याही पद्धतीची युती झालेली नाही। त्या पद्धतीमध्ये जिल्हाध्यक्षांनी देखील आम्हाला काही या पद्धतीने बोलले नाही की माझी बोलणं झालेलं आहे। तसंच शिवाजीराव चोते साहेब यांनी देखील आम्हाला सांगितलं नाही की यांची आमच्या म्हणजे शिवसेनेसोबत आमची युती झालेली आहे म्हणून या ठिकाणी मी असं या ठिकाणी प्रेस मीडियांना सांगतो की आमची शिवसेनेसोबत कोणत्याही पद्धतीची युती झालेली नाही। तुर्तास त्यांनी जे आमचे पोस्टर बॅनर लावलेले आहेत ते त्यांनी वापरू नये। आणि सगळ्यात महत्व तालुका खुल्दाबाद के मज़ाफ़ात पाडली में ज़िला परिषद स्कूल में मुनक़िदा पेरेंट्स मीटिंग के दौरान स्कूल के असातिज़ा ने 2 तालिबात के पेरेंट्स जो कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलहदा रह रहे थे उनकी काउंसलिंग करते हुए उनमें सुलह करवा दी। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक पाडली की 2 तालिबात सोनाली बोर्डे जो कि 6ठी जमात में पढ़ती है और मीनाक्षी बोर्डे जो कि 4थी जमात की तालिबा है अपनी नानी के घर रहकर तालीम हासिल करती हैं। वालिद की शराब नोशी की आदत और घर में रोज़ाना पेश आने वाले झगड़ों से तंग आकर इन बच्चों की वालदा 1 महीना पहले मैके चली गई, जिसका असर दोनों बच्चियों की तालीम पर भी पड़ रहा था। ये सूरत हाल बच्चियों ने स्कूल की मौल्लेमात को बताई थी। जब 25 नवंबर को पेरेंट्स मीटिंग हुई और इस मीटिंग में वालिदैन गैर हाजिर रहे तो हेडमास्टर अनिल श्रीखंडे ने मामला संजीदगी से लेते हुए बच्चियों की मां को स्कूल आने के लिए कहा। हेडमास्टर के साथ असातिज़ा केडी देवराय, रानी दुमाले, एसके चौधरी, अलका रोकड़े, एसबी गाड़ेकर ने नरमी से समझाते हुए बच्चों की मां को इस बात का एहसास दिलाया कि बच्चियों के लिए मां की मौजूदगी और उसकी शफकत कितनी ज़रूरी है। असातिज़ा के समझाने पर बच्चियों की मां ने दोबारा घर लौटने पर आमादगी ज़ाहिर की। बाद अज़ां स्कूल के अमले ने दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत करवा कर सुलह करवा दी और दोनों ने नए तौर पर ज़िंदगी का आगाज़ करने पर रजामंदी ज़ाहिर की। पेरेंट्स मीटिंग में होने वाले इस गैर मुतवक्के मुसालहत से गाँव वालों और असातिज़ा ने इत्मीनान का इजहार किया है। बच्चियों को दोबारा वालिदैन का प्यार मिलने वाला है, जिससे स्कूल में भी खुशी और सुकून का माहौल पैदा हो गया है। माझी दोन्ही मुली शिकत आहेत। मी 4 वर्षापासून माझी मुलीपासून लांब होते तर श्रीखंडे सरांनी मला समजून सांगितलं दोघं नवरा-बायकोचे भांडणं चालूच राहत्या, पण तुमच्या मुलींचं भविष्यासाठी तुम्ही हा विचार करा पुढचा। त्यामुळे सरांनी मला समजून सांगितलं। माझा संसार एकदम व्यवस्थित चालू आहे। माझी मुली दोन्ही शिकत आहेत शाळेमध्ये, त्याच्यामुळे सर श्रीखंडे सरांचे मी धन्यवाद करते। खबरें और भी हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़।
ये रूट मार्च फुलंब्री टी पॉइंट से शुरू होकर नगर पंचायत इमारत, सुनार गली, विठल मंदिर, राम मंदिर, सावंत मंदिर, फतह मैदान, जामा मस्जिद, सब्जी मंडी, बस स्टैंड के सामने पहुंचकर खत्म हुआ। रूट मार्च के लिए करमाड़, चिकलठाना, वड़ौद बाजार और फुलंब्री पुलिस स्टेशनों की मुश्तरका फोर्सेस शामिल थीं, जिनमें 13 पुलिस ऑफिसर्स, 37 पुलिस एहलकार, 42 होमगार्ड्स, सीआरपीएफ जवानों की एक टुकड़ी और एसआरपीएफ जवानों की एक टुकड़ी शामिल थी। तमाम मुलाजमीन लाठी, राइफल, गैस गन, हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर के साथ तैनात थे। ये रूट मार्च एसडीपीओ पूजा नागरे की रहनुमाई में किया गया, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर संजय साहने, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सहाजी वड़ते, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर मुरड़े, वड़ौद बाजार के एपीआई सुनील एंगड़े, पीएसआई धोले, वड़ौद बाजार के पीएसआई शीर सागर, पीएसआई सुग्रेव चाटे, चिकल थाना के पीएसआई पारधे शामिल थे। रूट मार्च का मकसद शहर में अमन व अमान की फिजा को मजबूत करते हुए आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबी कार्रवाइयों को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करना था। टूर ऑपरेटर ने सहाफ़ियों को बताया कि कुछ तकनीकी वजूहात के सबब आज़मीन का वीज़ा जारी न होने की वजह से वो लोग 20 नवंबर को सफ़र उम्रा पर नहीं जा सके, और अब जबकि इन तमाम आज़मीन के वीज़ा जारी हो चुके हैं, उन्हें औरंगाबाद से मुंबई ले जाया जा रहा है, जो आज सहारा एयरपोर्ट मुंबई से उम्रा सफ़र के लिए रवाना हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो एक मोमिन है, ठीक है, मुसलमान है। जब मुसलमान होने के मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी के पैसे लेके भागूं या भाग जाऊं। और ये जो है असल में वीजा लेट लगने की वजह से हमने हाजियों को जो डेट दिए थे, पहले 15 तारीख दिए थे, फिर बाद में 15 तक वीजा नहीं लगे, फिर जो है 18 तक जो है हमने एक्सटेंड करके उसको 18 तारीख करे, 18 को भी वीजा नहीं लगे, और हमारे जो वीजा लगे वो लगे 20 तारीख को। वहां पर अभी जो हालात चल रहे मक्के और मदीने में, ये बहुत हार्ड चल रहे। मक्के और मदीने के होटल असल में पूरे तकरीबन होटल फुल चल रहे। फुल चलने की वजह ये कि उन्होंने मक्के में 25% होटल तोड़ दिए, 20 कई हजार होटल तोड़ दिए। मदीने में उससे ज्यादा 40% होटल तोड़ डाले। तो ये कभी ये प्रॉब्लम्स आते नहीं थे, लेकिन ये जो मक्के और मदीने में ये जो उन्होंने है ना, जो हरम बड़ा कर रहे या एक्सटेंशन जो कर रहे, उसकी वजह से कई हजार होटल तोड़ दिए ये लोगों ने। अच्छा, और हर चीज उन्होंने जो है नुसुक बोल के एक पोर्टल है उनका, उसके ऊपर डाल दिए कि ताकि हर कोई भी बंदा जो है वही लाइन से आना, वो उसका पूरा का पूरा फायदा जो है गवर्नमेंट को होना, हर लिहाज से गवर्नमेंट उसमें जो है उसकी हिस्सेदारी है वो उसके ऐप के अंदर, लिहाजा उन्होंने कंपलसरी कर दी। तो ये वैसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीजा लेट लगने से टिकट 20 तारीख को वीजा लगी और 21 को रात की हमने टिकट ली। तो टिकट जो है उसने एयरलाइंस ने हमको बुकिंग दिया, लेकिन हमारा टिकट बुकिंग कंफर्म नहीं किया, टिकट इशू नहीं किया, और हमारा पीएनआर जो है वो बोला नहीं, आपका पीएनआर जो है कैंसिल हो गया। इसलिए हमको ये प्रॉब्लम आई, और जब प्रॉब्लम आई तो मैं हाजियों को बोला कि भाई आज एयरलाइंस बंद है, आज मैं इंशाल्लाह आपको होटल में रुक जाइए आप लोग, और मैं आपको इंशाल्लाह दूसरे मंडे, फौरी मंडे है, जैसी एयरलाइंस खुलेंगे मैं आपको फौरी शाम की फ्लाइट करके दे दूंगा। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक जालना ज़िले के बदनापुर तालुके के काजला गांव में एक जोड़े को मोहब्बत की शादी करना महंगी पड़ रही है। तकरीबन 5 से 6 माह पहले एक नौजवान ने एक खातून से लव मैरिज की और अपना घर बसाया, मगर इस शादी के बाद से ही दूल्हा गणेश तुलसीदास पिटले
اور اس کی بیوی کو اس کے گھر والوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس پریشانی کے سبب جوڑے کو گاؤں چھوڑنے کی نوبت آ گئی ہے۔ گنیش پٹلے کا کہنا ہے کہ ان کی بیوی کے گھر والوں نے شادی پر کوئی اعتراض نہیں جتایا، مگر گنیش کے اپنے بھائی، ماں اور دیگر رشتہ دار ان کے خلاف ہو گئے اور دونوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا ایک عام بات ہو گئی۔ ان کا الزام ہے کہ اس تمام معاملے میں گاؤں کے کچھ لوگ اور بدناپور پولیس اسٹیشن میں تعینات ایک خاتون پولیس کانسٹیبل اور ایک ہوم گارڈ بھی شامل ہیں۔ گنیش کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 10-12 دنوں سے بدناپور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے جا رہے ہیں، مگر پولیس ان کی شکایت قبول نہیں کرتی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی ملکیت کی گائے بھی چوری چھپے ان کے والدین اور بھائی نے بیچ دی۔ گنیش پٹلے نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے، اس لیے انہیں इंसाफ दिया जाए। सर, माझं लग्न झाल्यापासून मला मारहाण आहे आणि देवपिंपळगावचा पत्रकार आम्हाला मारहाण झाल्यास नंतर उचलून न्यायला आला आणि एक आमचा शेजारी आहे बोर्डे म्हणून, महेश बोर्डे होमगार्ड, तो आम्हाला म्हणतो का हे पैसे देत नाही तर याला याच्या पत्नीला जीवच मारून टाका आणि माझा भाऊ त्याच्यात सामील आहे। म्हणजे माझं लग्न झालेलं त्याला देखत नाही, त्याच्यामुळे त्याचं म्हणणं आहे का तू तुझ्या पत्नीला सोडून दे, नाही जर सोडून दिलं तर आम्ही मारून टाकू शकतो तिला। तक्रार फार दाखल केल्या, आता आम्ही गायची तक्रार दाखल केली तर आम्हाला धमक्या द्यायला पोलीसवाल्यांना, घेत नाही म्हणून कलेक्टरकडे गेलो, SP कडे गेलो, आम्हाला न्याय मिळा। आम्हाला याच्या उपर काहीच मागणी नाही का हे अशा धमक्या नको का तू कुठे अजून हे पत्ता सांग, आम्ही तुम्हाला जीवच मारू शकतो। भाऊ पत्रकारला लावून देतो का तू कुठे सांग, आणि देवपिंपळगावचा त्याचा सासरा आहे तो बी म्हणतो ते कुठे विचारा, त्याचा साला बी म्हणतो ते कुठे विचारा। ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق سپر سلنڈر مشین میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی اس آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاہم وقت رہتے اندر موجود 17 مزدوروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا اور ایک بڑا جان لیوا حادثہ ٹل گیا۔ آگ بجھانے کے لیے MIDC، میونسپل کارپوریشن، پیٹھن، والوج اور شیندرا سے مجموعی طور پر 6 فائر بریگیڈ گاڑیاں اور 30 اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر لگاتار 5 گھنٹے جدوجہد کی۔ یہ کارروائی ڈپٹی فائر آفیسر انیل دیشمکھ، فائر لیڈر KT سوریہ ڈرائیور آپریٹر SK گائیکواڑ، فائرمین پرمود حجاری، سنتوش مہالے، PB تاندڑے اور دیپک کاملے و دیگر 30 جوانوں نے مل کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں 1 کروڑ روپیوں سے زائد کا مالی نقصان ہونے کا ابتدائی اندازہ کمپنی کے پلانٹ ہیڈ گنونت رانے نے ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے شہر میں خود کو بااثر اور اعلیٰ آفیسر ظاہر کرنے والی کلپنا بھاگوت کا جال اب ایک ایک کر کے بے نقاب ہونے لگا ہے۔ اس کے فون کی تفتیش میں جعلی OSD ابھیشیک چودھری سے اس کے رابطوں کا انکشاف ہوا، جس کے بعد جانچ ایجنسیوں نے دہلی، نوئیڈا، ہریانہ اور راجستھان میں 4 ٹیمیں روانہ کی۔ آخرکار جمعہ کی رات دیر گئے دہلی میں ابھیشیک چودھری کو حراست میں لے لیا گیا اور اسی دوران کلپنا کے عاشق محمد اشرف کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کلپنا بھاگوت کی تفتیش میں اب بھی وہ گول مول اور ٹال مٹول والے جواب دے رہی ہیں، جس کی گہرائی سے تفتیش ATS، مقامی پولیس اور مرکزی خفیہ ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ کلپنا کے ماضی تک پہنچنے کے لیے ویجا پور میں اس کے اسکول سے معلومات طلب کی گئی ہیں، ساتھ ہی یونیورسٹی انتظامیہ سے اس کی ملازمت اور برطرفی سے متعلق دستاویزات بھی منگوائی جائیں گی۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کلپنا کو تقریباً 19 لاکھ روپیے مختلف ذرائع سے ملے ہیں۔ جن افراد نے کلپنا کو یہ رقم بھجوائی ہے وہ کون ہیں اور انہوں نے یہ رقم کیوں دی، اس کی جانچ جاری ہے۔ شہر پولیس نے اس مالی لین دین پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
साथ ही एक खुसूसी टीम ये पता लगा रही है कि अभिषेक चौधरी और अशरफ का क्या किसी गैर मुल्की अफराद से भी राब्ता था। कल्पना, अभिषेक और अशरफ के बाहमी ताल्लुकात और इस रैकेट की उसवत को लेकर जांच एजेंसियां इंतहाई संजीदगी से तहकीकात कर रही हैं। जालना शहर के भवानी नगर के रिहायशी सागर भगवान आगलावे को जान से मारने की नीयत से ज़दोकोब किया गया था, जिसकी रिपोर्ट रुकमन बाई आगलावे ने खदीम जालना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। आईपीसी की दिफा 352, 115(2), 109, 103(1) के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद अज़ां सागर का इलाज जारी था कि उसकी मौत हो गई। इब्तदाई तफ्तीश में तमाम मुलजिमीन फरार हो गए थे, ताहम मालूमात के जरिए पता चला कि फरार मुलजिम मादन सिंह जीवन सिंह राजपूत घर पर मौजूद है। इस इत्तला पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आरती जाधव ने टीम के साथ जायखू पर जाकर मादन सिंह राजपूत को लोधी महल्ले से हिरासत में ले लिया। इसी तरह फरार मुलजिम विजय गजानन बोड़खे, जो जामवादी ताल्लुका जालना के इलाके में शनाख्त छुपा कर घूम रहा था, के बारे में भी मोतबर इत्तला मिली। पुलिस टीम फौरी रवाना हुई और विजय बोड़खे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक भवानी नगर कत्ल के मामले में कुल 4 मुलजिमीन खदीम जालना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये इत्तला API RT जाधव खदीम जालना पुलिस स्टेशन ने दी है। ये कार्रवाई SP अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नुपानी, SDPO अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में और खदीम जालना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाले, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर RT जाधव, अहलकार बाबा गायकवाड़, इंस्पेक्टर विलास राउत और नंद किशोर टेकाड़े की टीम ने अंजाम दी। भवानीनगर येथे खून झालेला सागर उर्फ अरुण आगलावे याच्या मृत्यू प्रकरणी FIR दाखल झाला होता। त्यावेळेस 3 आरोपींच्या विरोधात ही फिर्याद दाखल करण्यात आलेली होती, परंतु सुरुवातीला 2 आरोपी जे तपासादरम्यान आपण अटक केले, त्या तपासात निष्पन्न झालं की त्यांचा आणखी एक साथीदार याच्यामध्ये सामील होता। त्यानुसार त्या साथीदाराला लोधी मोहल्ला येथून अटक करण्यात आलेली आहे। त्याचा आज रोजी आपण त्यांना मान्य न्यायालयात हजर केलं आणि काल संध्याकाळी यातला शेवटचा आरोपी जो आहे विजय बोडखे यास अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यास आज मान्य न्यायालयात हजर केलेले आहे। एकूण 4 आरोपी आता या गुन्ह्यात आहेत। ज़राए का कहना है कि कंटेनर में शीशे की बोतलों और टीन पैक समेत तकरीबन 2000 बियर के डब्बे मौजूद थे। गाड़ी उलटने से बड़ी मिकदार में बोतलें टूट गईं और बियर सड़क पर बह गई। इसके साथ ही कंटेनर से रिसने वाले डीजल ने पूरा रास्ता फिसलन भरा बना दिया था, जिससे सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही वालुज MIDC पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा। हुजूम की जानिब से जारी लूटमार रोकने के लिए और सड़क खाली करवाने के मकसद से फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने पानी का स्प्रे करके लोगों को पीछे हटा दिया। मकामी सरपंच, ओहदेदारान और समाजी कारकुनों ने भी इमदादी कार्रवाई और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भरपूर ताउन किया। इस हादसे में कंटेनर का ड्राइवर सैयद अब्दुल्ला कैबिन में फंस गया था। रेस्क्यू टीम ने कटर मशीन की मदद से उसे बाहर निकाला और फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। दरी असना इस हादसे के सबब रंजनगांव के इलाके में तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैफिक बुरी तरह से जाम रहा। कंपनी के अफसरान ने हादसे में बच जाने वाले बियर के डब्बों को एक दूसरी गाड़ी में महफूज तरीके से मुंतकिल करवाया। ये कार्रवाई जालना के पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नुपानी और डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में की गई। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल हरीश राठौड़, महेश वांगे, कांचन चंदेल, शेख दादा साहब चौहान,
परमेश्वर धुमाल, कैलाश बाहुरे, विशाल काले, सुनील गाजरे शामिल थे। जालना शहर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन की हदूद में मंगल बाजार और अलंकार टाकी समेत मुख्तलिफ मकामात पर चल रहे 3 मटका अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 99,200 रुपये का सामान भी जब्त किया गया। इस सिलसिले में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये इत्तला डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी ने दी। हो, आज आमच्या पथकानं आणि सदर बाजार पोलिसांनी 3 ठिकाणी छापे टाकलेले आहेत। एक मंगळ बाजारला आणि अलंकार टाकी जवळ 3 छापे टाकलेले आहेत। धरमचंद रामचंद्र सांबरे, शिवकन्या कमल किशोर बंग हे मंगळ बाजारला, त्यानंतर शुभम प्रकाश नामदे आणि पवन रामलाल कत्ते लष्करी यांचं अलंकार हॉटेलच्या जवळ एक छोटं दुकान होतं तिथं, आणि पुन्हा अजून अलंकार टाकीच्या जवळच आयुष अशोक यादव जे की शिवकन्या कमल किशोर बंग ह्याच चालवत होत्या। असे 3 ठिकाणी आम्ही आयडेंटिफाय केलेले होते। गोपनीय माहितीच्या आधारे त्या 3 ठिकाणी आम्ही छापे टाकलेले आहेत आणि 3 ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये एका ठिकाणी 25,240, दुसऱ्या ठिकाणी 33,310 आणि तिसऱ्या ठिकाणी 40,650 असं एकूण 99,200 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। हा मटक्याच्या चिठ्ठ्या आणि हे अन्य जुगाराचं साहित्य आणि कॅश आपण जप्त केलेले आहे आणि यामध्ये एकूण 6 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। जालना में गुज़िश्ता कई महीनों से डाक के जरिए मोहलिक हथियार मंगवाने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इब्तिदा में क्राइम ब्रांच ने निगरानी रखकर कई मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मंगवाया गया असलहा भी जब्त किया गया। बाद में ये कार्रवाइयाँ कुछ मुद्दत के लिए रुक गई थीं, मगर हाल ही में दोबारा खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि डाक के ज़रिए तलवारें मंगवाई जाने लगी हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम ने दोपहर के वक्त डाक खाने के बाहर ही छापा मारकर एक नाबालिग लड़के को तलवार समेत हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नूपानी, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी और सदर बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप भारती की रहनुमाई में की गई है। ऑपरेशन में पीएसआई सचिन सानप, पीएसआई हरीश राठौड़, अहलकार सागर खेरे, इमरान खान, परमेश्वर धुमाल, दुर्गेश गोपने और विशाल काले भी शामिल थे। रुपये मालियत का मसरूखा सामान बरामद कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक दया सिंह बेहम सिंह कल्लानी और उसके साथी लल्लू सिंह जेले सिंह कल्लानी ने 16 नवंबर 2025 की रात को गायत्री नगर जालना में वाक़ दुर्गा प्रसाद राधा कृष्ण जोशी के मकान में घुसकर तकरीबन 1,50,000 रुपये मालियत के सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम चोरी की थी। इस मामले में बीएनएस के तहत केस दर्ज करके तफ्तीश हेड कांस्टेबल धनंजय कावड़े के सुपुर्द की गई थी। पूछताछ के दौरान दया सिंह कलानी और उसके साथियों ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि ये वारदात उन्होंने अभिषेक लक्ष्मी नारायण शर्मा के साथ मिलकर अंजाम दी थी, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती की रहनुमाई में तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों के कब्जे से पुलिस ने 6 लाख रुपये मालियत का मसरूखा सामान बरामद कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नूपानी, एसडीपीओ अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में और पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती की क़यादत में डीबी स्क्वाड ने अंजाम दी। इस कार्रवाई में शैलेश मस्के, हेड कांस्टेबल जगन्नाथ जाधव, धनंजय कावड़े, सचिन चौधरी, जमादार पटेल, जमादार मिंजाल, दुर्गेश गोफने, गणेश तेजनकर, धनंजय लोंढे, शेख कटकम और ड्राइवर कल्पेश पाटिल भी शामिल थे। गायत्री नगर एरियामध्ये घरफोडी झालेली होती दुर्गा सिंग जोशी यांच्या घरी मागच्या 17-18 या महिन्यामध्येच, आणि साधारणपणे त्या घरफोडीमध्ये 50 ग्रॅम सोनं आणि 150 ग्रॅम चांदीचे शिक्के चोरीला गेलेले होते। तर सदर बाजारच्या डीबी पथकाने यामध्ये कारवाई केलेली आहे। त्यांना एक लीड मिळालेलं होतं, गोपनीय माहिती मिळाली। दया सिंग कलानी आणि लल्लू सिंग कलानी यांनी घरफोडी केल्याची त्यांना माहिती होती। त्या आधारे आपण त्यांना ताब्यात घेतलं आणि विचारपूस केली असता त्यांनी ती घरफोडी केल्याचं कबूल केलेलं आहे, आणि आपण या गुन्ह्यात चोरीला गेलेला जो मुद्देमाल आहे सगळ्याचा सगळा मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे।
सोनं साधारणपणे 50 ग्रॅम आणि चांदी 130 ग्रॅम असा मिळून हा 5.5 लाखाचा मुद्देमाल आहे आणि 80,000ची मोटरसायकल 6.5 लाखाचा मुद्देमाल आपण या गुन्ह्यामध्ये जप्त केला. घरपोच रक्कम उघड केली आहे. सदर बाजारच्या DB पथकाने पोलीस निरीक्षक संदीप भारती साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई केलेली आहे आणि या आरोपींकडनं अजून गुन्हे उघडकीला येण्याची शक्यता आहे. रेकॉर्डवरील आरोपी आहेत. रेकॉर्डवरील आरोपींच्या नियमित चेकिंग दरम्यान आपल्याला यांनी गुन्हा केल्याची माहिती मिळाली होती आणि त्यामुळे आपण त्यांना ताब्यात घेतलं. आपल्याला ही घरपोच उघडकीस आणण्यामध्ये यश मिळालं आहे. त्यांच्याकडून अजून जास्तीत जास्त गुन्हे उघडकीला येण्याची पण शक्यता आहे. त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करत आहोत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कामकाज का इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया जायजा, मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। उबूरी होटल इस पर मौसूला एतराज़ात के इजाले के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत उतरे मैदान में। मुताल्लिका अमले के हमराह कर रहे हैं शिकायत कुनिंदगान और शहरियान से मुलाकातें, मातहतीन को दी एतराज़ात हल करने की सख्त हिदायत। नगर परिषद और नगर पंचायत इंतखाबात के लिए 2 दिसंबर को की जाएगी रायदही। फुलंब्री नगर पंचायत इंतखाबात के लिए पुलिस मुस्तैद। शहर में किया रूट मार्च और धांधलियां करने वालों को दिलाया अपनी मौजूदगी का एहसास। और पैठन MIDC इलाके में मौजूद नाथ इंडस्ट्रीज में लगी भयानक आग। 6 फायर गाड़ियों के अमले को 5 घंटे मुसलसिल जद्दोजहद के बाद आग बुझाने में मिली कामयाबी। कंपनी का 1 करोड़ रुपयों का माली नुकसान होने का लगाया जा रहा है अंदाजा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।